Hello everyone. In this session, we will continue exercise 8. In the last session, we have completed up to question number 14. Now question number 15. We need to find the area of the region y square is less than equals to 4x and 4x square plus 4y square is less than equals to 9. Or you may write x square plus y square is less than 9 by 4. So, सबसे पहले we will draw the graph. So y square is equals to 4x is nothing but parabola at the vertex 0, 0. And second is x square plus y square is equals to 9 by 4, which is a circle having the center at 0, 0 and radius 3 by 2. Okay, so first x axis and y axis origin. This one is the circle. Next, parabola. So y square is equals to 4x is the parabola, right? Y square is equals to 4x parabola. This point is 3 by 2, 0. Radius is 3 by 2. That's why. Okay. Now y square is less than equals to 4x. लास्ट सेशन के अंदर भी हमने इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन देखा था. तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4x कौन सा रीजन शो करेगा? आइदर इंटीरियर है तो एक्सटीरियर. तो लेट वी कंसीडर कि भाई y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के अंदर इंटीरियर पार्ट में 3 by 2 है एंड लेट वी कंसीडर कि भाई इंटीरियर पार्ट है तो 3 by 2, 0 must satisfy this inequality. So 0 less than equals to 4 into 3 by 2, which is correct, right? मतलब अवर एजम्पशन हमने जो एज्यूम किया है वो राइट है. तो इसका रीजन कौन सा है? अंदर वाला. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is less than 9 by 4. x square plus y square is less than equals to r square. कोई सर्कल है तो इंटीरियर पार्ट देता है, राइट? ऑब्वियसली 0, 0 पॉइंट पुट करो यहाँ पे. तो देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 9 by 4. सर्कल के अंदर में 0, 0 है ना पॉइंट ऑरिजिन. तो 0 plus 0 लेस देन इक्वल्स टू 9 by 4, विच इज करेक्ट. मतलब दोनों का इंटीरियर पार्ट है. तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? सो इन बोथ द केस कॉमन रीजन इज दिस पोर्शन, राइट? ये जो है वो कॉमन रीजन है. ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर का एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे. ऊपर का एरिया फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे यहाँ पे. सो फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 0, 0 टू दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड एरिया अंडर दिस पैराबोला, राइट? एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू 3 by 2 वी नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द सर्कल. तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of y square is equals to 4x and x square plus y square is equals to 9 by 4 is nothing but, तो y square is equals to 4x पुट कर दे तो x square plus y square that is 4x is equals to 9 by 4. It implies that 4x square plus 4 4s are 16x is equals to 9. So 4x square plus 16x minus 9 is equals to 0. Now 9 4 ja 36. So 18 2 ja 36. So 4x square plus 18x minus 2x minus 9 0. 2x common. So 2 2 ja 4 and 2 9 ja 18. Minus 1 common. So 2x plus 9 is equals to 0. So 2x minus 1 and 2x plus 9 is equals to 0. So 2x is equals to 1. It means that x is equals to 1 by 2. 2x is equals to minus 9. So x is equals to minus 9 by 2. So point of intersection here plus 1 upon 2. Okay. So x is equals to 1 by 2. अगर x is equals to आप 1 by 2 put करो तो 4 by 2 and 4 by 2 is nothing but 2. So you will get y is equals to root 2 and this point should be 1 by 2 comma minus root 2. Negative में तो intersection होगा ही नहीं. So this point is 1 by 2 comma 0. Okay. Now parabola y square is equals to 4x. y square is equals to 4x. It implies that y is equals to root 2x. Only ऊपर का कंसिडर कर लेते. Circle x square plus y square is equals to 9 by 4. It implies that y square is equals to 9 by 4 minus x square. So y is equals to square root of 9 by 4 minus x square is for y2. Area. Now area is nothing but 2 times area under the parabola minus area under the circle, right?
एरिया अंडर द पैराबोला माइनस एरिया अंडर द सर्कल. बट पैराबोला का एरिया कहां से कहां तक? सो एरिया अंडर द पैराबोला फ्रॉम द 0 to 1/2 and 1/2 to 3/2. So 0 to, this area is from 0 to 1/2 and this one is from 1/2 to 3/2, right? So area is equals to 2 times integration 0 to 1/2 area under the parabola, that is y1 dx, minus 2 common है ना, 1/2 to 3/2 area under the circle, circle is nothing but y2 dx. So y1 is equals to हमारे पास है √2x and माई मिस्टेक 2√x होगा, √2x थोड़ी ना होगा. सो 2√x and y2 √9/4 minus x square. So area is equals to 2 times 0 to 1/2 2√x dx minus 2 times plus ना, not minus, plus करना पड़ेगा, my mistake हो, plus 1/2 to 3/2 y2 is nothing but square root of 9/4 minus x square dx, right? So again area is equals to यहाँ पे 2 times 0 to 1/2 2√x dx plus 2 times 1/2 to 3/2 square root of 9/4 minus x square dx. Okay, so area is equals to 2 into 2, that is 4, √x का integration, तो x to the power 3/2, so x power 3/2 dividing by 3/2, limit is from 0 to 1/2 plus 2, इसका integration x/2 square root of 9/4 minus x square plus a square by 2, that is 9/8 sin inverse x upon a, तो 3/2 तो 2/3, right? Limit is from 1/2 to 3/2. So area is equals to, now ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो 4 2 8 डिवाइडिंग बाय 3, right? So 8/3 x 2 power 3/2 minus 0 plus 2 into x is equals to 3/2, so 3/4 minus 9/4 minus 9/4 3/2 square, right? Plus 9/8 sin inverse 2/3 into 3/2 minus 2 into, because 1/2 पुट करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 1/2 x is equals to, तो 1/4 square root of 9/4 minus 1/2 square, that is 1/4 plus 9/8 sin inverse 2/3 x is 1/2. Okay, so area is equals to 8/3 and 2 power 3/2, that is 2√2. Okay, so which is equals to 2√2, right? Then minus 1/2 plus 1, that is 3/2, okay, right, plus 2 into, this one is 0, plus 9/8 into sin inverse 1 minus 2 1/4, 9 minus 1 8, 8/4, that is equals to 2, so this will be the √2, right? Then next one is the plus 9/8, 2 to cancel, sin inverse 1/3. So area is equals to 8 2 ja 16 into √2 dividing by 3. Okay, then plus 2 into 9 by 8, so 9/4, so plus 9/4 into sin inverse 1, that is nothing but pi/2, so 9/4 into pi/2 minus 2 √2 dividing by 4. Okay, and minus 2 9s are 18/8, so 9/4 sin inverse 1/3. So area is equals to हो गया हमारे पास 9 pi/8 minus 2 √2/4. Okay, so LCM लेना पड़ेगा, तो 16 √2 minus 2 √2, यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 3 है एंड हियर डिवाइडिंग बाय 4, so 3 4 जा 12,
एंड 16 4 जा दैट इज 64. ओके, यहाँ पे जगह नहीं है तो 64. देन 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. सो 64 minus 6 that is 58, right? So 58 dividing by 2 into 2 root x 0 to 1 by 2. यहाँ पे लिमिट में गलती हो गई, x is 1 by 2, right? यहाँ पे 1 by 2 पावर 3 by 2 पुट करना पड़ेगा. So this will be the not 2 root 2, that will be the 1 upon 2 root 2. So ये दोनों कैंसिल हो गया. 4 by 3 root 2. This two get cancelled. So here that will be the 2 root 2. 2 root 2 by 3. यहाँ पे भी 2 root 2 by 3 minus 2 root 2 by 4. So यहाँ पे LCM ले लेते हैं. root 2. So 2 root 2 by 3 minus this one. तो फाइनल आंसर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूँ. This one is 9 pi by 8 minus 9 by 4 into sin inverse 1 by 3 plus 1 upon 3 root 2 square units. तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट. दिस वन इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. We need to find the area by the curves y is equals to x cube and the x-axis and the coordinate x is equals to -2 and x is equals to 1. So y is equals to x cube का ग्राफ पहले तो क्या होगा, ऑड फंक्शन है ना, तो y is equals to x cube का जो ग्राफ होगा that will be this one. ये हो गया y is equals to x cube का ग्राफ. And the x-axis coordinate x is equals to -2, तो x is equals to -2 is this line, x is equals to -2 line, this point -2 comma 0, and the another line is x is equals to 1 line. तो x is equals to 1 line, this is 1 comma 0 up to x axis तक है. तो यहाँ पे a रीजन आएगा, this one, right, and यहाँ पे a रीजन. Okay, so area is equals to, so y is equals to x cube, so area is equals to -2 to 0, -2 to 0, कहाँ से कहाँ तक, this curve that is x cube dx plus 0 to 1 again x cube dx. Okay, so area is equals to, this one is x power 4 by 4, limit is from -2 to 0, plus this is again x power 4 by 4, limit is from 0 to 1. So area is equals to 0 minus plus, sorry, minus 2 power 4 that is 16, so minus 16 by 4 plus 1 by 4 minus 0. So area is equals to minus 16 by 4 plus 1 upon 4. So area is equals to हो गया 15 by 4, right? Area is equals to 15 by 4. Fifteen by 4 is the answer. Next, यहाँ पे गलती हो गई, एरिया तो कभी नेगेटिव देगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे मॉड्यूलस अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दोनों एरिया अलग अलग है. तो दिस विल बी द 16 by 4 plus 1 by 4, so that is 17 by 4. ओके, नॉट 16 by 4, माय मिस्टेक. तो यहाँ पे जो आंसर हो गया दैट इज द 17 by 4 स्क्वायर यूनिट. ओके, दिस वाज द आंसर. Question number 17, we need to find the area bounded by the curves y is equals to x into modulus of x, which is nothing but x square if x greater than 0. Why? Modulus of x is x and modulus of x is minus x, मतलब minus x square if x is less than 0. And the coordinate x is equals to -1 and x is equals to 1. तो ग्राफ देखो कैसा होगा, तो y is equals to x square का ग्राफ कैसा होता है, this one, but minus x square, तो वो नीचे हो जाएगा इस तरीके से. So this is the graph for the y is equals to, यहाँ पे जो ग्राफ है that is y is equals to x square. Okay, and this graph is for the y is equals to
कर्व जो है ना वो थोड़ा इस साइड से नीचे ही जाएगा। तो जैसे ऊपर जाता है वैसे ही वो कर्व नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। नाउ लाइक दिस वन, इस तरीके से, राइट। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो, यू विल गेट द सेम, सो इट इज लाइक दिस वन, ओके। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर जो है वो सेम यहाँ पे एंड इसका मिरर इमेज नीचे की साइड में, ओके। सो दैट इज लाइक दिस वन, बट थोड़ा स्मूथ कर्व हो जाएगा, राइट। नाउ x इज इक्वल टू कौन सा है, -1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो x is equals to -1, this point is -1, 0 and this line is x is equals to 1 and this point is 1, 0, alright। so we need to find this area, area आपको फाइंड करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, राइट, बिकॉज दोनों साइड सेम होगा, कर्व सेम है, लिमिट इज फ्रॉम सेम, so area is equals to 2 times 0 to 1 y is equals to x square dx, so 2 times x cube by 3, limit is from 0 to 1, so 2 1 by 3 minus 0, तो एरिया हो गया हमारा 2 by 3 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया इज इक्वल टू 2 by 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे 2 by 3 कौन सा आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी 1 by 3 4 by 3। नेक्स्ट इज द 18 नंबर, x square plus y square is equals to 16, x square plus y square is equals to 16, which is nothing but a circle, exterior to the parabola, y square is equals to 6x, so y square is equals to 6x graph and x square plus y square is equals to 16, x square plus y square is equals to 16 is nothing but a circle with the center 0 0 and radius 4, y square is equals to 6x is this curve parabola, right, this one is the parabola, तो ये हो गया y square is equals to 16। now area of the circle and exterior to the parabola, parabola का exterior part यहाँ पे कौन सा मिलेगा आपको, this part, तो ये एरिया आपको फाइंड करना है, we need to find this area, okay, ये एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है। so कैसे फाइंड करोगे, so first of all we need to find, आप पहले सर्कल का आपको डायरेक्ट एरिया फाइंड कर लो एंड देन ये जो इंटीरियर पार्ट वाला जो एरिया है वो हम सेपरेट कर देंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज नथिंग बट पाई आर, रेडियस इज नथिंग बट 4, सो पाई इंटू 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 16 पाई, एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 16 पाई, ओके। देन दिस एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, अभी आगे हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा, राइट, तो यहाँ पे मैं पूरा आपको फाइंड नहीं करके दूंगा, बट आपको मैं सभी वैल्यू लिख के देता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी द 2,2√3, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो 4 12 16, तो दिस पॉइंट इज 2,0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 6x है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू √6 इंटू एक्स, इसको हम y1, x square plus y square is equals to 16, it implies that y square is equals to square root of 16 minus x square, y is equals to, right, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y2, तो एरिया क्या हो जाएगा, so 2 times integration is from 0 to 2, integration is from 0 to 2, area under this parabola that is √6 into √x dx plus 2 to यहाँ पे 2 to 4, एरिया अंडर द सर्कल दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो आप इसको सोल्व कर दो, सो यू विल गेट, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा 4 by 3 इंटू 4 पाई प्लस √3, ओके। नाउ टोटल एरिया क्या होगा, सो टोटल एरिया इज नथिंग बट 16 पाई माइनस 4 by 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई प्लस √3, अंदर का जो एरिया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 16 पाई माइनस 16 पाई बाय 3 माइनस 4√3 डिवाइडिंग बाय 3, तो 16 3 जा 48 माइनस, so 32 पाई बाय 3 माइनस
4√3/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हियर ऑप्शन, तो 4/3 सभी में कॉमन है, तो 4/3 में कॉमन ले लेता हूं पहले, तो क्या होगा 4/3, तो 4 8 जा 32 पाई माइनस 4/3, सो 83 स्क्वायर यूनिट्स। 4/3 8 पाई माइनस √3, तो 8 पाई माइनस √3, 8 पाई माइनस √3, दैट इज ऑप्शन सी। ये एरिया आपको किस तरीके से फाइंड किया वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू नंबर 19, एरिया बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू y एक्सिस सबसे पहले, देन y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू sin x बिटवीन 0 to π/2। सो y इज इक्वल टू sin x एंड cos x का पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। दिस इज द ग्राफ फॉर द y इज इक्वल टू sin एक्सिस, राइट। 0 to π/2 है तो मैं y is equals to sin x. Now y is equals to cos x का ग्राफ, so y is equals to cos x at the π/2, x is equals to π/2 पे it gives value 0. So this is the graph for the y is equals to cos x, right? And here it is the -1 like that. Okay, तो 0 to π/2 and y axis, तो a रीजन आपको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू फाइंड दिस रीजन, ए रीजन आपको फाइंड करना है यहाँ पे। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक लाइन है एंड दिस वन इज द अनदर लाइन, राइट। दोनों के बीच में जो है दिस वन इज द यहाँ पे π/4 एंड हियर इज 1/√2 बिकॉज sin π/4 and cos π/4 value is 1/√2. This graph is for the y is equals to sin x and this graph is for the y is equals to cos x, right? तो sin x का एरिया कहां से कहां तक, 0 to this one 1/√2 and यहाँ पे 0 and here 1. Okay, so area is equals to, पहले तो y इज इक्वल टू साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे y के फॉर्म में नहीं चलेगा, वी नीड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ x. सो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स y, यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, इसको x1 एंड हियर इट इज x2, राइट। देन 0 to 1/√2 and 1/√2 to 1 like that. Okay, so ये जो ग्राफ है this is for the sin x, so area is nothing but 0 to 1/√2 x1 dy plus 1/√2 to 1 x2 dy, right. So area is equals to 0 to 1/√2, x1 is nothing but sin inverse y dy and 1/√2 to 1 x2 is nothing but cos inverse y dy, right. So एक मेथड है, राइट। सेकंड मेथड, आप जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया इतना फाइंड कर लो, तो वी नो दैट दिस एरिया इज नथिंग बट 1 स्क्वायर यूनिट, राइट। इसमें से ए जो एरिया है ना वो हम निकाल देंगे, ए में मेथड इजी पड़ेगी, सेकंड वाली मेथड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये ऊपर जो हमने मेथड किया वो मेथड से हम सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक ए मेथड हो गया, बट हम ए मेथड से अभी यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे बिकॉज ये लेंथी मेथड हो जाएगी। तो शॉर्टकट मेथड देखो, दो मेथड से करते हैं तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए है y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला ग्राफ, दिस वन इज द π/2, राइट, एंड दिस वन इज द y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। नाउ अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू π/4 पे। सो एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो एरिया फाइंड करना है वो ए एरिया फाइंड करना है, ठीक है। दिस एरिया यू नीड टू फाइंड, तो मैं यहाँ पे अंदर वाला जो एरिया है ना जो येलो रीजन में नहीं है वो एरिया फाइंड करता हूँ, तो कैसे, ए एरिया अंदर वाला, ठीक है। 0 to π/4, ये कौन है पहले,
so that is nothing but sin x dx plus pi by 4 to pi by 2 cos x dx. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, कॉस का साइन एक्स, लिमिट इज फ्रॉम पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, तो माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 प्लस साइन पाई बाय 2 minus sin pi by 4. So this one is minus 1 upon root 2 plus 1 minus 1 upon root 2. So 2 minus 2 by root 2, that is root 2. Okay, ये हो गया. अब we know that sin का जो 0 to, एक काम करते हैं मैं, this is the cos x 0 to pi by 2, आप एरिया फाइंड कर लो. तो cos x a1 0 to pi by 2 cos x dx. So cos का sin x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. ओके, तो sin पाई बाय 2 माइनस साइन 0, दैट इज 1 माइनस 0, सो 1. तो फाइनल एरिया कौन सा है हमारे पास? तो एरिया ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो पूरा एरिया है, राइट, ये पूरा एरिया, उसमें से येलो नीचे जो वाला रीजन था, ये ब्लैक रीजन, वो हमने जो फाइंड किया, दैट इज नथिंग बट 2 माइनस रूट 2, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 1 माइनस 2 minus root 2. So 1 minus 2 minus minus plus root 2. So that is nothing but root 2 minus 1 square units. Okay, तो इस तरीके से फाइंड किया जाता है इसका एरिया. So root 2 minus 1 which is nothing but option. अगर आप इनवर्स मेथड से सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो वो मेथड हम सोल्व नहीं कर सकते. तो इस सेशन के अंदर यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 9. ओके, मोस्ट प्रोबेबली 9th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक, थैंक यू.